Now, hello my dear students. Today we will learn most important vocabularies. Now, here the power of the vocabularies. Power of the vocabularies. If you have no vocabularies, then you can't speak out. But there is so many tips are given by some YouTubers that the vocabulary is not essential. You speak out, speak out. No. Here I have given you a few best known phrases that you can use in your speaking or writing. Now first, here is the pull for. Pull for. You know the word pull. Pull का मान होता है खींचना. But here pull for here means support. Pull for means support. आप किसी का support कर रहे हैं, pull for कर रहे हैं. They were pulling for the Congress candidates. They were pulling for the Congress candidates. इसका मतलब होता है कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द पुल फॉर. हियर इज दिस पुल डाउन. पुल डाउन. पुल डाउन का मतलब है खींचना, नीचे को खींचना. पुल डाउन आप अर्निंग करना, सैलरी पाना, अर्निंग करना. टू रिसीव सैलरी, अर्न समथिंग, आप रिसीव करते हैं सैलरी, उसको कहते हैं पुल. ही इज पुलिंग डाउन 60,000 a year. ही इज पुलिंग डाउन 60,000 a year. इसका मतलब है वो 60,000 रुपया पर माह इनकम करता है, रिसीव करता है. इसका ये मान है. बट you should not confuse. Once again I told you that you should use pull in, पहुंचना, pull in पहुंचना. Reach, arrive, reach or arrive. Here reach or arrive. The train pulled in at the right time. The train pulled in, रुका, arrive किया, in, at the right time, सही वक्त पर पहुंचा, pull in. Now, here another word, pull up. Pull up. Pull up. Uprooted. आप खींच कर किसी पौधे को जड़ से उखाड़ देना, पुल अप करना. नाउ द वर्ड सेंटेंस इज दिस. पुल अप द डेड प्लांट्स. पुल अप द डेड प्लांट्स. जो मरे हुए पौधे हैं उनको खींचकर उखाड़ दो. दैट इज कॉल्ड पुल अप. नेक्स्ट, पुल अप. डोंट बी कंफ्यूज्ड. नाउ English is unique language. Unique language, why? Because there are so many words that you become confused where to use and how to use. Here is the pull up again. Here the meaning is pull up, stop. कैसा stop? रुक जाना. गाड़ी जा रहा था, रास्ते में पुल अप हुआ. किसको देख के? सिग्नल को देख के. Here is the pull up. देखिए ये वर्ड का कैसे मैजिकल वर्ड्स है. हियर इज दिस पुल अप, स्टॉप. द ड्राइवर पुल अप, रुक गया. पुल अप, ड्राइवर ने पुल अप किया. कहाँ पर? एट द ट्रैफिक लाइट. एट द ट्रैफिक लाइट. ट्रैफिक लाइट में ड्राइवर हो गया ना. हियर इज दिस अगेन पुल अप और एक पुल अप. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. यू टेक दिस lesson from beginning to end, then you can understand how to use pull up. Here is the pull up is called फटकारना, डांटना. यानी कि कोई ऑफिसर है या कोई मालिक है, नौकर को फटकारता है, डांटता है, वो पुल अप करता है. He was pulled up by his manager. He was pulled up by his manager. उसको अपना मैनेजर ने फटकारा, डांटा. पुल
अप किया. Here is the score. Revoke भी कहते हैं, pull up. But it's depend upon you how to use. Now again you can pull about. Pull about. Don't pull about your elders. यानी कि दुर्व्यवहार करना. Pull about. अपने बड़ों के साथ दुर्व्यवहार मत करो. Pull about मत करो. Pull about is a good phrase for using in your speaking or writing. Remember here, don't pull about. मत करो. उनके साथ दुर्व्यवहार मत करो. Your elders. अपने एल्डर के साथ में दुर्व्यवहार मत करो. Respect them always. हर वक्त उन्हें सम्मान दो. Now the word is using in different ways that needs your attention to consume over these words and use it in time. Here is this. To pull no purchase. Purchase. Here to pull no purchase. This is also a very fantastic one. Most of the time we are not soften one's criticism in any way. कभी भी कम यानी कि काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ना. आप हर वक्त काम करते जाइए. काम करने में कोई कसर मत छोड़िए. इसका मतलब टू पुल नो परचेस. द स्टूडेंट दोज आर प्रिपेयर फॉर द कंपटीशन दे आर पुलिंग नो परचेस. वो लोग काम करते जाए यानी कि काम करने में कोई कसर न छोड़े. रिजल्ट इज डिपेंड अपॉन गॉड. रिजल्ट होगा आपका आपके भगवान के आशीर्वाद से. मगर आप हर वक्त पुल नो परचेस. टू पुल नो परचेस दैट मीन्स यू वर्क रेगुलरली. कोई कसर चारों तरफ से हर वो जाबिये से हर वो एंगल से आप काम करिए. नाउ all these words are very useful. Again I am going to the another word is a neck. Neck. The word is very interesting but the magic of the word will astonish you. आपको चौंका कर रख देगा. मगर आप देखिए तो सही. No, you will not look at. आप इसको वॉच नहीं करेंगे बिकॉज यू आर वॉचिंग द रील्स. यू आर वॉचिंग द ऑल फॉल. देखने में आपको अच्छा लगता है. वेरी फाइन. बट रिमेंबर ए टाइम इज अप्रोचिंग that whenever you face the examination, your talent will express by your expression. Now, neck. Okay, what is writing here? Here, another word that is called the nick. N-I-C-K. Nick. I will play with this word. Now, thousands words in English language that you know how to use it. Okay, now here is this nick. जेल. आप जानते हैं निक कहते हैं जेल को. या क्रिमिनल was taken to the nick. एक क्रिमिनल को निक में लिया गया. निक का मतलब होता है नेक. N-I-C-K. नेक. निक को लिया गया. क्यों निक को लिया गया? वो क्रिमिनल था इसलिए. Here is the neck means jail. He spent a year in a neck. In a neck. एक नेक में उसने एक साल गुजारा. नेक का मतलब होता है जेल. नेक. ओके, नाउ नेक अरेस्ट. दिस वर्ड इन द टू वेज. एक हुआ जेल, एक हुआ अरेस्ट. अगर आप ऐसा कहते हैं the police nicked the criminal and sent to the neck. अरेस्ट किया क्रिमिनल को और भेज दिया नेक में. नाउ ये मेरे तरफ से सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर. नाउ पुलिस अरेस्ट a criminal
ये जो अरेस्ट था अगर हम यहां कर दें द पुलिस नेक, अच्छा है, नेक अ क्रिमिनल, पुलिस नेक अ क्रिमिनल, क्रिमिनल को अरेस्ट किया एंड सेंट टू द नेक, उसने नेक में भेज दिया, जेल में भेज दिया। डू अंडरस्टैंड? द पुलिस नेक द क्रिमिनल एंड सेंट हिम टू द नेक, उसको भेज दिया नेक में। हाउ इज दिस? इट इज ऑल्सो वेरी फैंटास्टिक, वेरी ओके। आई कैन से it is not our language, only for this we are not taking interest towards it. हम इंटरेस्ट कब लेंगे? जब हम पूरा लैंग्वेज को समझ सकेंगे तभी तो लेंगे। नाउ लुक एट दिस अगेन, निक ऑफ द टाइम, नेक ऑफ द टाइम, ऑन टाइम, फिर वो पहुंचा, ही अराइव्ड, वो पहुंचा इन द निक ऑफ टाइम। यहां पर देखें, वी वर ऑन द प्लेटफॉर्म इन द निक ऑफ टाइम, हम प्लेटफॉर्म पर थे इन द निक ऑफ टाइम, नेक ऑफ टाइम, नेक ऑफ टाइम पर थे, पहुंचे। अगर हम नहीं, जैसा पहुंचे ट्रेन छूट गया, एकदम नेक छोड़ने वाला ही था, नेक ऑफ द टाइम। इसी वर्ड से, निक से एक वर्ड बना निफी। देखो वर्ड को किस तरह आप सजाड़ते हुए ला रहे हैं, निफी। निफी माने बदबूदार, कोई चीज बदबू, बैड स्मेलिंग, बदबू। आप ऐसा कहते हैं, व्हाट ए नीफी, ये प्लेस कितना नीफी है, बदबूदार है। व्हाट अ नीफी, इसलिए हमने यहाँ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया, व्हाट अ नीफी, कितना ये है। फिर नीफी, व्हाई नॉट यू विल कंफ्यूज्ड, आप क्यों नहीं कंफ्यूज्ड होंगे? कंफ्यूज्ड होना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीफी का माने होता है बैड स्मेल, यहीं पर नीफी का माने होता है, स्लैंग में अगर इस्तेमाल करते हैं उसका एक्सीलेंट, फास्ट रेट, बहुत उम्दा। अगर आप ड्रेस पहन के आए, हम कहें कि आप नीफी ड्रेस पहने हैं, तो बहुत उम्दा हुआ, बदबूदार ड्रेस यहाँ नहीं हुआ। हाउ टू यूज, फर्स्ट यू लर्न हाउ टू यूज। यहाँ पर देखिए, वेयरिंग अ नीफी न्यू ड्रेस, ये न्यू से पता चला रहा है कि ये नया ड्रेस है, नीफी है, न्यू ड्रेस, यानी कि बहुत ही उम्दा है, एक्सीलेंट है, फास्ट रेट है। Wearing a nifty new dress, he went to a party. Went to a party. That means wearing a nifty new dress, he went to a party. Actually, all these words are very useful. If you try to speak out, you should make practice. How to you should make a friend circle where you try to use. It's nifty, your new dress is nifty. Nifty new dress. Like this, you will improve and understand the essence of language. Without this, you can't speak very flourished language, ornamental language. If you like to be a good speaker, a good writer, then you follow my channel. Or look at it attentively, watch it once again. Thanks a lot. I hope that you will subscribe my channel now.